Hello everyone. So today the topic of revision is uterine inversion, that is also coming under the same topic which we did in the last lecture, that is complications of third stage of labor. So let's start with it. First of all comes the definition for inversion of the uterus. It is extremely rare but a life-threatening complication in third stage in which the uterus is turned inside out partially or completely, right? What happened in this is, this particular complication occurs in the third stage of labor in which the uterus turns inside out of the vagina, right? So don't confuse this particular condition with prolapse of uterus. What happens in prolapse of uterus? The uterus descends downwards, right? It comes downward or it slips down, right? But in this particular condition, the uterus will be coming out of the vagina inside out, ठीक है? अंदर वाली साइड जो होगी वो बाहर की तरफ को आएगी इसमें, right? So it can either be partially or completely. Then next comes variety, or you can say degrees of inversion of uterus. So there are 3 degrees of uterus inversion which is acceptable worldwide, right? So first degree, second degree and third degree. First degree में what happen is there is dimpling of the fundus which still remains above the level of internal os. ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फंडस होता है वो नीचे की तरफ को डिसेंट होना शुरू कर देता है, ठीक है, डिम्पलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है फंडस की, बट इट विल रिमेन अबव द लेवल ऑफ इंटरनल ओस, मतलब कि अभी भी वो सर्विक्स के ऊपर ही है, राइट? देन सेकेंड डिग्री में जो फंडस है इट पासिस थ्रू द सर्विक्स के अंदर आ जाता है, बट इट लाइज इनसाइड द वेजाइना. And in third degree, the endometrium with or without the attached placenta is visible outside the vulva. Third degree में क्या होगा, जो endometrium है, it can be like visible outside the vulva with or without the attached placenta. ठीक है, the cervix and part of vagina may also be involved in this process. तो third degree में cervix और part of vagina जो है वो भी endometrium के साथ साथ बाहर vulva से आ जाएगा, ठीक है. So these are the 3 degrees. So this is a picture showing inversion of uterus. First picture is for first degree, another one is for second degree, followed by the third degree. ठीक है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं. Again another picture depicting the same degrees of uterine inversion. So first degree में you can see inverted fundus up to the cervix. ठीक है, cervix के ऊपर तक ही है. 1 second I will show you with the marker. ये देखिए जो यूट्रस का फंडस है, ठीक है, ये cervix के अभी ऊपर तक ही है, राइट? सेकेंड डिग्री में क्या होगा, it will pass through the cervix into the vagina like in this condition, ठीक है. और थर्ड डिग्री में क्या होगा, पूरा का पूरा यूट्रस जो है ये वल्वा से बाहर आ जाएगा, inside out, right? Then next comes etiology. So etiology में 40% जो causative factors है that are spontaneous in nature. Other factors include iatrogenic factors that we will discuss in the next slides, ठीक है. So सबसे पहले causes आ जाते हैं जो common causes हैं इसके, ठीक है. सबसे पहला आता है आपका excessive contraction, right? Especially with an unseparated placenta. What this point is saying that if the placenta is not separated, ठीक है, it is unseparated, but still the attendant or birth attendant जो है they are giving excessive contraction, ठीक है, so that can lead to this particular inversion of uterus. Then next है excessive fundal pressure, especially when the uterus is poorly contracted or atonic. ये हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं. If the uterus is atonic, we should not give fundal pressure at all, ठीक है. Then placenta accreta. In the previous lectures we have discussed about placenta accreta, that is morbid adherent placenta, ठीक है. So that can lead to this condition. Then congenital predisposition, इसमें आ जाएगा fundal implantation of the placenta, कि जो placenta है वो fundus के साथ अटैच था, तो in the process of expulsion of the placenta fundus भी साथ में नीचे की तरफ को आ जाएगा, ठीक है. Then either spontaneous और iatrogenic causes, ठीक है. जैसे आपको बताया ज़्यादातर causes 40% कौन से होती हैं, स्पॉन्टेनियस फैक्टर्स होते हैं, और बाकी फैक्टर्स क्या हैं आपके, iatrogenic फैक्टर्स हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर.
सो स्पॉन्टेनियस फैक्टर्स, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू 40% ऑफ द केसेस। सबसे पहले है इसमें एबनॉर्मल शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है दैट इज relatively shorter in size, ठीक है, और functionally shortened by being wrapped around the fetal neck, ठीक है, जो फीटल बॉडी है उसके अराउंड रैप हो रखी है, जिसकी वजह से जो कॉर्ड की लेंथ है वो शॉर्टन हो गई है, या फिर वो वैसे ही लेंथ में छोटी थी पहले से। देन सडन राइज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यू टू मैटरनल कफिंग और वॉमिटिंग, ठीक है, सपोज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर द मदर इज एक्सपीरियंसिंग एक्सेसिव कफिंग और शी इज एक्सपीरियंसिंग वॉमिटिंग, ठीक है, सो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड अल्टीमेटली इट विल कॉज दिस कंडीशन। देन है मॉर्बिड एडहेरेंस ऑफ फंडली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा था दैट इज अटैच्ड ऑन द फंडल पोर्शन ऑफ द यूट्रस एंड प्लस इट इज मॉर्बिडली एडहेयर टू द fundus, ठीक है। Then connective tissue disorder such as Marfan syndrome, right? So these all are the factors which can contribute to inversion of the uterus. So then iatrogenic factors. Iatrogenic factors में आपका आता है due to mismanagement of third stage of labor, ठीक है। iatrogenic factor में कौन से फैक्टर आते हैं, जो कि अगर कोई थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को अच्छे से मैनेज कर नहीं पाता है कोई बर्थ अटेंडेंट, ठीक है, तो जैसे कि पुलिंग द कॉर्ड व्हेन द यूट्रस इज एटोनिक, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नंबर ऑफ टाइम्स कि नेवर पुल द कॉर्ड व्हेन द यूट्रस इज एटोनिक, ठीक है, along with the fundal pressure should always be avoided if the uterus is atonic. Then comes creed expressions, ठीक है, creed expression भी हम यूज करते हैं to expel out the placenta, so that should be avoided while the uterus is relaxed, ठीक है। Then faulty technique in manual removal of placenta, ठीक है, if the person who is performing manual removal of placenta and he or she is not competent enough, then it can lead to this particular condition. So while separating retained placenta from the wall, a portion may remain attached, and as the placenta is withdrawn, the fundus is also withdrawn. And in some condition क्या होगा, अगर जो प्लेसेंटा है वो मॉर्बिडली एडहेयर है और आपने कुछ पोर्शन से उसको वो सेपरेट हो चुका है और बाकी के पोर्शन से वो इतना ज़्यादा एडहेयर है कि वो पूरा का पूरा प्लेसेंटा जो डिटैच हो चुका है उसके साथ वो फंडस को भी लेता हुआ बाहर आ जाएगा, ठीक है। देन कम्स दी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दिस पर्टिकुलर condition, that is inversion of the uterus. So a portion of uterine wall prolapses through the dilated cervix और indents forward, ठीक है, कि कुछ पोर्शन सबसे पहले जो है किसी भी फैक्टर की वजह जो अभी हमने डिस्कस करे हैं उनमें से कोई भी फैक्टर आगे आएगा और यूट्राइन वॉल का कुछ पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ को आ जाएगा, ठीक है, एंड इट विल पास थ्रू द डायलेटेड सर्विक्स, ठीक है। देन इट विल लीड टू रिलैक्सेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द यूट्राइन वॉल, और जो पोर्शन यूट्राइन वॉल का बाहर आया था वो अब क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ, ठीक है, जो बाकी का फंडस होगा वो भी नीचे की तरफ को आ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी और साइमल्टेनियसली डाउनवर्ड ट्रैक्शन। Then ultimately it will cause to the condition that is inversion of the uterus. Then there will be sudden cardiovascular collapse due to heavy blood loss, right? Then the examiner will feel the lump in the presence of lump in the vagina, which we have already discussed in the above point, है ना, that the woman or that examiner will feel mass in the vagina. Then there will be abdominal tenderness, ठीक है, which will be evident at the time of palpation, abdominal palpation. Then next sign and symptoms में आता है आपका absence of uterine fundus on abdominal palpation. ये again repeat point है, हम discuss कर चुके हैं ऐसे, ठीक है। Then next comes shock. So shock is initially out of proportion with the amount of blood loss. So shock depends upon the amount of blood loss. Woman becomes sweaty with bradycardia, profound hypotension and rarely cardiac arrest, ठीक है। ये सारे symptoms जो हैं आएंगे and it will depict कि जो woman है she is in shock. In short time there is marked hemorrhage and hypovolemic shock, ठीक है, which is also related to loss of blood. देन और कुछ डायग्नोसिस बनाने के लिए भी साइन एंड सिम्टम्स हमने लिए हैं इसके अंदर, ठीक है। कुछ सिम्टम्स जैसे कि अभी बताया आपको, एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन विद बियरिंग डाउन सेंसेशन, ठीक है, ये वुमेन फील करेगी। देन कुछ आ जाते हैं साइंस आपके, वेरिंग डिग्री ऑफ शॉक इज अ कांस्टेंट फीचर। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे उससे भी हमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फंडस जो है वो हमें नहीं मिलेगा, प्लस जो एब्डोमेन होगी दैट विल बी टेंडर ऑन पैल्पेशन। देन वी कैन गो फॉर बाईमैनुअल एग्जामिनेशन। व्हेन वी आर डूइंग दिस बाईमैनुअल एग्जामिनेशन वी विल फील द like this
we will feel a mass in the vagina. In complete variety, pear-shaped mass protrudes outside the vulva with broad end pointing downwards and looking reddish purple in color. अगर complete variety है मतलब कि 3rd degree है अगर inversion का, तो एक पूरा का पूरा pear shape mass जो है वो हमें vagina के बाहर पड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, जिसका कि broad end जो होगा वो सबसे नीचे की तरफ को होगा. ब्रॉड एंड क्या है? फंडस है, ठीक है, एंड विच विल लुक लाइक रेडिश पर्पल इन कलर. देन कम्स प्रिवेंशन. प्रिवेंशन इसकी हम कैसे कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3rd स्टेज की एक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है. अगर एक्टिवली मैनेज करते हैं हम 3rd स्टेज ऑफ लेबर को, इन दैट कंडीशन वी कैन प्रिवेंट दिस पर्टिकुलर situation, that is inversion of uterus. So do not employ any method to expel placenta out when the uterus is relaxed, ठीक है. जब भी uterus relaxed है, atonic है, then never employ any method to expel out the placenta. Pulling the cord simultaneously with fundal pressure should be avoided, ठीक है. एक तरफ से cord pull करो, साथ में fundal pressure दे रहे हो, तो this should be avoided because it can lead to inversion of the uterus, and especially if the uterus is atonic. Then manual removal in a safe manner, ठीक है. अगर morbid adherent placenta है and you have applied all the methods to separate the placenta but it has not been separated, तो जो manual removal करना है that should be done under general anesthesia and in a proper steps or techniques. Then comes management, ठीक है. How you can manage this particular condition? So immediate assistant is summoned to include anesthesia personnel and other physician, right? तो assistance लेनी है, help लेना है सबसे. Then the recently inverted uterus with placenta already separated from it may often be replaced, ठीक है. कहने का मतलब क्या है कि अगर यूट्रस इन्वर्ट हो चुका है, अभी अभी इन्वर्ट हुआ है और प्लेसेंटा भी साथ में है उसके, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो उसकी दोबारा पुरानी पोजीशन पे. एडिक्वेट लार बोर इंट्रावीनस इन्फ्यूजन सिस्टम शुड बी एस्टैब्लिश. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करना पड़ेगा और अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी हमें, हैवी अमाउंट ऑफ फ्लूइड भी हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे. इफ स्टिल अटैच्ड द प्लेसेंटा इज नॉट रिमूव्ड अंटिल इन्फ्यूजन सिस्टम्स आर ऑपरेशनल, फ्लूइड्स आर गिवन and a uterine relaxing anesthetic such as halogenated inhalation agent has been administered, ठीक है. halogenated inhalation agent क्या करेगा? anesthesia का काम करेगा, ठीक है. Then other tocolytic drugs such as terbutaline, Retrodrine, magnesium sulfate, anti-G have been used successfully for uterine relaxation and repositioning, ठीक है. क्योंकि यूट्रस अगर कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो उसको दोबारा रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है, तो पहले हमें यूट्रस को रिलैक्स करना पड़ेगा, ठीक है. अगर कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो हम नहीं कर पाएंगे उसको. तो यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए हमने टोकोलिटिक एजेंट्स लेने हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शंस को कम करेंगे, जैसे कि टर्ब्यूटालिन है, रिट्रोड्रिन है, MgSO4 है और नाइट्रोग्लिसरिन है, ठीक है, एंटी-जी. देन नेक्स्ट है आफ्टर रिमूविंग द प्लेसेंटा स्टेडी प्रेशर विद द फिस्ट इज अप्लाइड टू द इन्वर्टेड फंडस इन एन अटेम्प्ट टू पुश इट अप इनटू द डायलेटेड सर्विक्स, ठीक है. सो अगर प्लेसेंटा रिमूव हो चुका है या सेपरेट हो चुका है तो उसको रिमूव कर लिया है. देन हम अपने फिस्ट के साथ, ठीक है, अप्लाई करेंगे प्रेशर इन्वर्टेड फंडस के ऊपर ताकि उसको हम वापस ऊपर की तरफ को अंदर की तरफ भेज सकें. केयर इज टेकन नॉट टू अप्लाई सो मच प्रेशर एज टू परफोरेट द यूट्रस विद द फिंगर टिप्स. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट. इतना ज़्यादा हमने प्रेशर नहीं लगाना है कि जिससे यूट्रस में होल हो जाए, यूट्रस ही परफोरेट हो जाए. तो जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं अपनी फिस्ट के साथ दैट शुड बी डन केयरफुली. देन है सर्जिकल इंटरवेंशन. So the uterus cannot be re-inverted by vaginal manipulation because of a dense constriction ring. सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत हमें कब पड़ेगी? जब हम यूट्रस को ऐसे री इन्वर्ट नहीं कर पा रहे इस कटिंग टेक्निक के साथ, तो हम क्या करेंगे, उसको लेप्रोटमी करनी पड़ेगी उस केस में हमें, ठीक है. और ऐसा सिचुएशन राइज कब होगा? व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रिक्शन रिंग, जिसे हम आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग भी बोल देते हैं, क्योंकि जब भी कंस्ट्रक्शन रिंग हमें मिलती है 3rd स्टेज ऑफ लेबर में तब हम उसे बोलते हैं आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग. तो उस केस में हमें लेप्रोटमी करनी पड़ेगी. सो नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट में ही कंटिन्यूड है बिफोर शॉक डेवलप. सो अभी शॉक डेवलप नहीं हुआ है तो हमने सबसे पहले काम क्या करना है? वी आर सपोज टू रिप्लेस द यूट्रस बैक टू इट्स पोजीशन. सो टू रिप्लेस द पार्ट फर्स्ट विच इन्वर्टेड लास्ट, जो पार्ट सबसे लास्ट में इन्वर्ट हुआ है उसको सबसे पहले हमने रिप्लेस करना है विद द प्लेसेंटा अटैच टू द यूट्रस बाय स्टेडी फर्म प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फिंगर्स, ठीक है. और जो प्लेसेंटा अटैच है साथ में, प्लेसेंटा को भी साथ में हम अंदर वापस भेजते हैं अलॉन्ग विद द यूट्रस.
देन टू अप्लाई काउंटर सपोर्ट बाय द अदर हैंड प्लेस्ड ऑन द एब्डोमेन, ठीक है, एक हाथ से अपने इसको अंदर भेजना है यूट्रस को वापस, और दूसरा हाथ जो है दैट विल बी ऑन पर एब्डोमिनली टू सपोर्ट द to give counter support to the other hand, ठीक है. Then after replacement the head should remain inside until the uterus become contracted by parenteral oxytocin और PGF2 अल्फा, ठीक है. और वो वाला हैंड जो हमने अंदर इंसर्ट किया होगा यूट्रस को रिप्लेस करने के लिए, उसको अंदर ही रखना है जब तक कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड ना हो जाए. और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूट्रस को हम क्या देंगे, ऑक्सीटोसिन और PGF2 अल्फा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है. Then the placenta is to be removed manually after the uterus became contracted. अब यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तब हम क्या करेंगे, जो अटैच प्लेसेंटा होगा उसको हम सेपरेट करेंगे मैनुअली. देन यूजुअल ट्रीटमेंट ऑफ शॉक इंक्लूडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी अरेंज. अभी शॉक डेवलप नहीं किया पेशेंट ने, इसलिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए अरेंजमेंट करके रखेंगे पहले से. सो ये मेथड है आपका जॉनसन्स मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है. जो पार्ट जो है यूट्रस का सबसे बाद में इन्वर्ट हुआ है उसको सबसे पहले हमने रिप्लेस करना है, ठीक है. इस तरह से उस ऑर्गन, फर्स्ट पिक्चर में देखिए आप, ठीक है, ऐसे इसको होल्ड करना है जो बाहर वाला एरिया होगा फंडस का, और उसको हमने अंदर इस डायरेक्शन में एब्डोमेन की तरफ को, अम्बलाइकस की तरफ को वापस भेजना है प्रेशर के साथ, ठीक है. Then once the uterus is replaced back, then we are supposed to close our fist like hand like this. एक फिस्ट बनानी है जो कि प्रेशर अप्लाई करके रखेगी, इसे जॉनसन्स मेथड भी बोलते हैं, ठीक है. देन उसके बाद बाई मैनुअल कंप्रेशन देना है, फिस्ट बनी रहेगी, और दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे हाथ से आपने काउंटर सपोर्ट देना है पर एब्डोमिनली, ताकि यूट्रस अपनी प्लेस पे जो है वो रहे, राइट. देन अभी बताया आपको, जब आप यूट्रस को रिप्लेस बैक कर दोगे, फिर अगर प्लेसेंटा अटैच्ड है अपने वॉल के साथ, यूट्रस की वॉल के साथ, तब आप उसको इस तरह से, इस मेथड के साथ आपने उसको मैनुअली रिमूव करना है, जो प्रोसीजर हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है पहले क्लास में, ठीक है. तो सबसे पहला क्या स्टेप है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेसेंटा इज सेपरेटेड बाय कीपिंग द बैक ऑफ द हैंड इन कॉन्टैक्ट विद द यूट्राइन वॉल एंड विद स्लाइसिंग मूवमेंट ऑफ द हैंड, ठीक है. आपकी जो हाथ की बैक साइड होगी वो यूट्राइन वॉल के साथ टच होनी चाहिए, और आपने स्लाइसिंग मूवमेंट में प्लेसेंटा को जो है वो सेपरेट करना है यूट्रस की वॉल से, स्लाइसिंग मूवमेंट के साथ, ठीक है. एंड दिस प्रोसीजर, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, इट इज अ पेनफुल प्रोसीजर, सो रिमेंबर दैट इट इज ऑलवेज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, इसीलिए हमें एनेस्थेटिस्ट की भी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है. देन है आफ्टर शॉक डेवलप्स, ठीक है. इफ द पेशेंट डेवलप शॉक, देन अर्जेंट डेक्स्ट्रोसलाइन ड्रिप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी कैरिड आउट and to push the uterus inside the vagina if possible and pack the vagina with antiseptic roller gauze, ठीक है. अगर शॉक डेवलप कर दिया है पेशेंट ने, डेक्स्ट्रोसलाइन ड्रिप लगाएंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, और यूट्रस को वापस उसको उसकी पोजीशन पे हम री इन्वर्ट करेंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे, सॉरी, ठीक है. और अगर ज़रूरत पड़े तो हम वेजाइना को एंटीसेप्टिक रोलर गॉज के साथ हम उसको पैक कर सकते हैं, ताकि यूट्रस जो है वो अपनी प्लेस पे लगा रहे. एंड फुट एंड ऑफ द बेड शुड बी रेज, ठीक है. फुट एंड जो हमने फुट एंड है बेड साइड का, वो हमने रेज कर देना है, राइट. देन रिप्लेसमेंट ऑफ यूट्रस इधर मैनुअली और हाइड्रोस्टैटिक मेथड अंडर जनरल एनेस्थीसिया इज डन, ठीक है. और हाइड्रोस्टैटिक मेथड जो है इट इज लेस शॉक प्रोड्यूसिंग, ठीक है. मैनुअली उसको रिप्लेस करने से ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, हाइड्रोस्टैटिक मेथड, क्योंकि इसमें शॉक डेवलप करने के चांसेस पेशेंट के कम हो जाते हैं. और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक मेथड को ओसुलिवन्स मेथड, एंड इट इज ऑल्सो डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है. देन आ गया सब एक्यूट स्टेज, इम्प्रूव जनरल कंडीशन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू द क्लाइंट. देन नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स शुड बी गिवन टू कंट्रोल द sepsis. Then reposition of uterus either manually or by hydrostatic method, that is also called as O'Sullivan method. It fails abdominal reposition by operation, Holstein operation करते हैं, ठीक है. अगर सपोज इन मेथड के साथ भी यूट्रस रिप्लेस नहीं हुआ, फिर हम एब्डोमिनल अप्रोच यूज करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉल्टेन ऑपरेशन, ठीक है. उस अप्रोच के साथ हम यूट्रस को उसकी प्लेस पे वापस फिक्स कर पाते हैं, ठीक है. देन कम्स लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या अराइज हो सकती हैं ड्यू टू इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस.
शॉक डेवलप हो सकता है, टेंशन ऑन द नर्व्स ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द इनफंडिबुलस पेल्विक लिगामेंट। तो जो नर्व्स हैं लिगामेंट के आसपास वो सारी स्ट्रेच हो, मतलब उनमें टेंशन अराइज हो सकती है ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द पेल्विक लिगामेंट। देन प्रेशर ऑन द ओवरीज एज दे ड्रैग्ड विद द फंडस थ्रू सर्वाइकल रिंग, ठीक है, क्योंकि सर्वाइकल फंडस के साथ साथ ओवरीज के ऊपर भी स्ट्रेचिंग प्रेशर आया था, इसलिए that can cause a complication. Then peritoneal irritation can be there, hemorrhage can be there, pulmonary embolism के chances बहुत ज़्यादा हो जाते हैं as a complication of inversion of uterus. And if the patient left uncared, it leads to infection, uterine sloughing and a chronic condition of the same. ठीक है? So this was about the topic inversion of the uterus. Hope this could help you in revising the topic as we have already did this topic in detail in class. Thank you so much.